Good morning, students. Today I am going to teach you SST Class 7, Chapter 1 What, Where, How, and When. Let us now discuss periodization of history. Periodization, that means process of dividing history into periods. History is the story of the people who lived in the past, the events that happened in the past 100 or 1,000 years ago. Thus, history is a vast subject cannot be learned in one go. पास्ट में रहने वाले लोगों की स्टोरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री बहुत फास्ट सब्जेक्ट होने के कारण हम लोग एक बार में नहीं सीख सकते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस इसे समझने के लिए इसके लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, एंसेंट, मीडिएवल and modern. This is called the periodization of history. Next paragraph, the medieval period 8th to 18th century. The word medieval stands for middle age. Middle age के लिए word यहाँ रेफर किया गया है medieval. In Europe, the medieval period is referred to as the middle age by many historians. बहुत सारे historians ने middle period को medieval नाम से रेफर किया है. It is considered to begin around 5th century AD and lasted until the 16th century AD. However, in India, it covers the period between 8th to 18th century. It is generally divided into 2 periods: early medieval periods, time period between the 8th to 12th century AD, and the later medieval period, time between the 13th to 18th centuries. During this period, India witnessed various political, social, economical and cultural changes. मीडिएवल पीरियड के दौरान इंडिया ने बहुत सारे चेंजेस देखा है, जिसमें कि इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल ऑल इन्वॉल्व हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ, टर्म्स यूज्ड फॉर इंडियन सब कंटिनेंट. इंडियन सब कंटिनेंट के लिए कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम द नेम ऑफ आवर कंट्री हैज़ अंडरगोन सेवरल चेंजेस. मिडिवल पीरियड के दौरान हमारे कंट्री को बहुत सारे नाम हमारे कंट्री के रखे गए. प्रेजेंट डे इंडिया टुगेदर विथ अदर कंट्रीज ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट विथ सच एज भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. इंडियन सब कंटिनेंट के साथ जैसे कि अदर कंट्रीज़, एग्जाम्पल भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश को पास्ट में बहुत सारे नामों से जाना गया था. Here is a list of some famous names. Jamudvipa, the land of the blackberry tree. The name is mentioned in ancient Buddhist text. Bharatvarsha, this name was given after the Bharata tribe which existed in Rigvedic times. Aryavarta, the land of the Aryans. This name was given around 150 BC to the northern part of India. Inde, the Greeks called it Inde based on the river Indus. Tin, Chu and Yen too. These terms were used by Chinese. Hindustan, this term is derived from the Greek word Indus or Indos. Hind, this name was called by the Arabs. India, this term was used by the British. Next paragraph, slight features of the medieval period in India. Some most important features of the medieval period in India. In India, the medieval period was quite eventful. During this period, several changes took place in the country's socio-culture, political magazines. Let's have a glance on the major features of this period. हम लोग कुछ important features पे focus करेंगे. First is arrival of the Turk from the northwest and establish of the Delhi सल्तनत. नॉर्थ वेस्ट से तुर्कों का आगमन और दिल्ली सल्तनत का establishment.
Second, establishment of the Mughal Empire. Third, economic prosperity of India that captured the attention of European powers. इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इतनी अच्छी थी कि उन्हें यूरोपियन पावर का अटेंशन मिला. इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनसुलर इंडिया. ईस्टर्न के साथ ही पेनिनसुलर इंडिया में कई किंगडम्स को फ्रीडम मिली. नेक्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म. एमर्जेंस ऑफ सेवरल राजपूत किंगडम इन नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में बहुत सारे राजपूत किंगडम भी सामने आए. राइज ऑफ मराठास एंड सिख्स. मराठा एंड सिख्स भी का उदय हुआ. ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन द प्लास प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूट्स. प्लास प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूट त्रिपक्षीय संघर्ष हुई तीनों में. स्प्रेड ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड, बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ. लेट अस नाउ डिस्कस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री कैन नॉट बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज पीपल हैव इन देयर माइंड इमेजिनेशन. हिस्ट्री अपने किसी भी लोगों के अकॉर्डिंग, उनके माइंड के अनुसार, उनके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती है. इट नीड्स वेरियस सोर्सेज ईच कंट्रीब्यूटिंग इन इट्स ओन मैनर. इसमें बहुत सारे सोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो हर एक सोर्स अपना अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन देता है. सोर्स मटेरियल्स provide us with reliable information about the events that have happened in the past. सोर्स हमें ऐसे मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जिस पे हम की ट्रस्ट कर सकते हैं. पास्ट में होने वाली इवेंट्स की इंफॉर्मेशंस को देखते हुए, सुनते हुए हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं. Happened in the past. Mainly there are two types of historical sources material. First is literary and second is archaeological. Literary are related to written documents and archaeological is the study of human activity. Those are recovery and analyzing of materials. Literary sources. Human learned to write only about 5,000 years ago. ह्यूमन लिखना सीखा 5,000 साल पहले ही ह्यूमन्स ने लिखना सीखा था. दे इन्वेंटेड अल्फ़ाबेट. उन्होंने अल्फ़ाबेट इन्वेंट किया एंड पुट देम टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. और उन्होंने वर्ड्स को जोड़ना, सेंटेंस बनाना सीखा. इन द बिगनिंग दे रोट ऑन स्टोन वॉल, पाम लीव्स एंड द बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज. स्टार्टिंग में उन्होंने स्टोन वॉल, पत्थर दीवारों पे लिखना स्टार्ट किया, पेड़ के छालों पे लिखा. लेटर व्हेन पेपर वाज इन्वेंटेड, जब पेपर का इन्वेंट हुआ, देन दे बिगेन टू पेपर फॉर राइटिंग. फिर उन्होंने पेपर पर लिखना, पेपर को लिखने के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया. These are called manuscripts. Manuscripts that means written by hand. And they are found in many different languages and in different script. Manuscript that means written by hand. और ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं और साथ में स्क्रिप्ट्स में भी पाए जाते हैं. Some example of scripts: Roman, Devanagari. Archaeological sources. Archaeological is the study of the past in the light of material remains left behind by our ancestors. आर्कियोलॉजिकल हमारे एंसेस्टर्स दैट मीन्स हमारे पूर्वजों के द्वारा पीछे छोड़ी गई कुछ बची हुई मटेरियल्स का स्टडी करना ही आर्कियोलॉजिकल है. सोर्सेस ऑफ आर्कियोलॉजी, सम एग्जांपल्स: बिल्डिंग्स, पोट्री, वेपन, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शन, राइटिंग ऑन स्टोन सरफेस एंड कॉइन्स. These are generally obtained during excavations of various historical sites. Historical sites पे खुदाई करने से ये सारी ऑब्जेक्ट्स मिलता है. Experts who study these remains are called archaeologists. Major archaeological remains that highlight various aspects life during the medieval period are briefly described here. आर्कियोलॉजिकल जो बचे हुए आर्कियोलॉजिकल है उसी पे वेरियस
उसके वेरियस लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है कि उस टाइम में ड्यूरिंग मिडिएवल पीरियड में कैसा था, और आर्कियोलॉजिस्ट इसे एक्सप्लेन करते हैं। Some example fort, temple, mosques, places and other such structures tell us about architectural style, artist skill and material normally used in the construction of building during those days। मिडिएवल पीरियड के टाइम में फोर्ट्स कैसे थे, टेम्पल्स कैसे थे, बिल्डिंग बनाने का आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा था, कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होते थे, इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजी सोर्स से मिलती है। A lot of useful information has come down to us various forts। हमें जो फोर्ट्स है इससे बहुत सारे वेरियस इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल फोर्ट एंड तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली, टेम्पल सच एज बृहदेश्वरा टेम्पल एंड प्लेसेस सच एज दोज इन जयपुर एंड जोधपुर। इन सभी फोर्ट से हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है कि उस टाइम में रनिंग रूलर कैसे थे, किंग कैसे थे, ऑल थी इकोनॉमिक सिचुएशंस कैसा था, फिनेंशियली क्या था, ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलते हैं। सम एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस, सोमदेवास कथा शरद सागर एंड द बृहद कथा बाबर, जहांगीर तुर्क जहांगीर, दैट ऑल आर रिटन लिटरेसी सोर्सेस। ऑटोग्राफीज बाबर, जहांगीरी, बायोग्राफीज हुमायूं नामा, अब्दुल फजल, अकबरनामा, ऑल थिंग अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, बटुटा, अब्दुल Ralph Veach, Marco Polo and फरमान्स और रॉयल ऑर्डर्स इशूड बाय डिफरेंट रूलर्स। टूटीनामा टेल्स फ्रॉम द पैरोट, जो कि एक पैरोट की स्टोरी है। मिनिएचर्स एंड द इलस्ट्रेट बुक, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी सोर्सेस।